ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણા તાલુકામાં આવેલું હણોલ ગામ હાલ આત્મનિર્ભરતાનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે। આ ગામમાં આગામી 13, 14 અને 15 જાન્યુઆરીએ ત્રિદિવસીય આત્મનિર્ભર હણોલ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપશે તેવી અપેક્ષા છે। ગુજરાતમાં એકમાત્ર એવું ગામ જ્યાં જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ વિના તમામ ગ્રામજનો એકતાના સૂત્રે જોડાયેલા છે અને ગામનો સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ રહ્યો છે। રોડ, રસ્તા, ડ્રેનેજ, લાઇટિંગ, આરોગ્ય અને રમતગમતની સુવિધાઓથી સજ્જ આ ગામને મોડેલ વિલેજ તરીકે ઓળખ મળી છે। કાર્યક્રમની રૂપરેખા જોઈએ તો 13મી જાન્યુઆરીએ યુવા યાત્રા, રોડના ખાતમુહૂર્ત અને રાત્રે રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે। 14મીએ મકર સંક્રાંતિના દિવસે સવારે સાયકલ યાત્રા અને પછી આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજો સાથે કાઇટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન છે। 15મીએ સમાપન સમારોહ યોજાશે। આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને ભાવનગરના સાંસદ નીમુબેન બાંભણિયા સહિતના મહાનુભાવો હાજરી આપશે। આ સિવાય ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ પીટી ઉષા તેમજ કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, રાજ્યના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા સહિતના મહાનુભાવો હાજરી આપશે। આ મહોત્સવ દરમિયાન રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી હણોલ ગામમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે, જે ગ્રામીણ જીવન સાથે જોડાયેલી તેમની ભાવનાઓને પ્રતિબિંબ કરશે। રાજ્યપાલ દ્વારા આ ગામમાં પ્રાકૃતિક ખેતી વિષયક પરિસંવાદ પણ યોજવામાં આવશે। રાજ્યપાલ દ્વારા ખેડૂતોને કુદરતી ખેતીના લાભો, અનુભવ અને માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવશે। રાજ્યપાલ આ કાર્યક્રમ દરમિયાન સવારે પ્રભાત ફેરીમાં ગ્રામજનો સાથે જોડાશે, સાથે જ ગ્રામ સફાઈ અભિયાનમાં પણ હાજરી આપશે। રાજ્યપાલની આ કાર્યક્રમની ઝાંખીમાં સફાઈ અભિયાન અને સ્વચ્છતાનો સામૂહિક જવાબદારીનો સંદેશ પણ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે ઝાંસી, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ પણ આ પ્રોજેક્ટ અભ્યાસ માટે આવી રહ્યા છે અને કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે। ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમે ગામની મુલાકાત લીધી ત્યારે તૈયારીઓ પૂરજોશમાં જોવા મળી અને ગ્રામજનોમાં અપાર ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। અત્યારે અમારા ગામમાં હણોલ આત્મનિર્ભર હણોલ મહોત્સવના કાર્યક્રમ નિમિત્તે અમારું ગામ આખું ગામ પરિવાર સાથે સુરતથી જ્યાં બહારથી જે વસવાટ કરે છે તે બધાય ગામમાં આવવા મળ્યા છે અને ખૂબ એક ઉત્સાહથી બધા કાર્યક્રમ માટે જોડાવા મળ્યા છે। દરેક તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગામમાં વિવિધ પ્રકારની કામગીરી શરૂ છે કાર્યક્રમના આગામી કાર્યક્રમ માટે। તેના માટે બધી ગોઠવણીઓ શરૂ છે અને બધા ટીમવર્ક સાથે કામ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ ઉત્સાહથી 13, 14 ને 15 3 દિવસનો કાર્યક્રમ છે। 13 તારીખે અમારે માનવંતા મહેમાનો અમારા ગામમાં પધારશે। તે જ રીતે જુવારા યાત્રા, પછી પેવેલિયનનું ખાતમુહૂર્ત એમ વગેરે વગેરે 14 તારીખે કાઇટ ફેસ્ટિવલ અને 15 તારીખે સમાપનમાં બપોર છે। એ રીતનો આખો કાર્યક્રમ છે અને ખૂબ સરસ રીતે કામગીરી શરૂ છે અને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગામ જોડાયેલું છે અને દરેકના મનમાં એક ઉત્સાહ અને લાગણી છે કે મારો કાર્યક્રમ છે, અમારો પ્રસંગ છે, મારું ગામ, મારો પરિવાર સાથે જોડાયેલી બધાની ભાવના અત્યારે આમ તમને સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે। તમે કોઈ પણ નાનું 5 વર્ષનું બાળક જોશો ને તો એનામાં પણ આમ એક થનગનાટ જોવા મળશે આ કાર્યક્રમને લઈને। એ રીતનું ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આખું ગામ જોડાયેલું છે। 13 તારીખે બપોરે અમારો કાર્યક્રમ શરૂ થાય છે। 13 તારીખે બપોરે શરૂ થઈ અને બપોરનો કાર્યક્રમ અમારા હણોલની 250 દીકરીઓએ જવારા જે વાવ્યા છે, જવારાની 2:30 વાગે યાત્રા નીકળશે। યાત્રા પ્લોટમાંથી નીકળશે, પ્લોટમાંથી થઈ રામજી મંદિર થઈ અને રામજી મંદિરથી પાદર લોકાર્પણ, જે ગામમાં જે આરસીસી રોડના બ્લોકના કામ થયા છે એનું લોકાર્પણ થશે। ત્યાંથી યાત્રા નાગબાઈ માના કેમ્પસે જશે અને બધા જ મહેમાનો માતાજીના દર્શન કરશે। પછી સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ જશે। સ્પોર્ટમાં જે અમારું મેચનું જે સ્ટેડિયમ છે, ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, તેમની ફરતી બધી દીકરી ઊભી રહેશે અને જવારાની यात्रा था। जी, मेरा नाम शुक्ला मुर्मू है। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं एबीसी एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव के अंदर मैं दाहोद लोकेशन में गुजरात में काम करती हूँ। अभी यहाँ पर आप आए हो, कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? अभी जो आत्मनिर्भर त्रिदिवसीय जो हणोल आत्मनिर्भर गांव का जो महोत्सव है, वहाँ पर आप जो ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, क्या कहेंगे उस पर?
जो आत्मनिर्भर का हम लोग जो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का अभी सर्वे चल रहा है, गांव के बारे में जान पहचान हो रही है। हम लोग को सुनने में आया बहुत कम्युनिटी वाइज सब मिलजुल के काम रहते हैं। हम लोग का 2 दिन हो रखा है, हम लोगों ने गांव में आत्मा मिलान जितना भी है बहुत अच्छे से रखा गया है। और इसमें भी हम लोग योगदान देंगे। अलग अलग कमेटी बनाई गई है जिसमें हम एक एक करके काम करेंगे उस रिगार्डिंग। अभी तो हमारे सर्वे का काम दिया गया है जिसमें हम लोग गांव के बारे में जानेंगे, और अभी के लिए तो इतना ही है। बाकी धीरे धीरे जब कमेटी आएंगी तो हम लोग एक एक कमेटी में अपने आप जुड़ते जाएंगे हमारे काबिलियत के अकॉर्डिंग। ચોક્કસથી અન્ય એક વ્યક્તિ છે, એમની સાથે વાત કરીશું। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर पहुँचे हो इस प्रोजेक्ट के लिए, और आत्मनिर्भर गांव क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा नाम स्मृति कुशवाहा है। मैं रहने वाली छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट की हूँ। अभी मैं मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ। चूँकि हम लोग पंचायत पे काम करते हैं और अभी यहाँ पर हम पंचायत पे आए हुए हैं, तो एक ऐसी पंचायत देखने मिल रही है जो काफ़ी डेवलप्ड है। और अभी यहाँ पे जैसे आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता मतलब अपने से ही लोग इनिशिएट करके चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलता है कि लोग अपने से जुड़ रहे हैं, गाँव में गाँव के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक समितियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग समितियों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारी के साथ में काम। तो गांव में देखने को मिलता है कि अकाउंटेबिलिटी तो है, लोग अपने आप में समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरा गांव है, मुझे ही से काम करना है और मुझे ही से डेवलप करना है। तो ये आत्मनिर्भरता का ही एक पार्ट है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी जैसे कि ये समारोह होने वाला है, तो इसमें हम अलग अलग समितियों में जाएंगे, हम भी थोड़ा सहयोग कर रहे होंगे। और फिलहाल तो अभी हम गाँव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो मालूम हो रहा है उनके बारे में, वो किस तरह से गाँव पे काम किए, 15 सालों का क्या विकास रहा है, अभी 1 साल में क्या विकास हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको मालूम चल रही है, और साथ में अच्छा भी लग रहा है देखकर कि इतना विकास हुआ है अभी गाँवों में। तो मेरे तरफ से तो अभी यही है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन यहाँ पे पीरामल फाउंडेशन के अंतर्गत जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है नर्मदा, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे 3 दिन का जो प्रोग्राम है, बेसिकली यहाँ पे एक विलेज का बहुत बड़ा महोत्सव रहता है। तो उसमें हमको भी इनवाइट किया गया है कि हम बेसिकली पंचायत और एजुकेशन डोमेन में काम करते हैं। तो एक आइडियल विलेज में किस तरीके से कम्युनिटी होती है, वहाँ पे लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे निर्णय लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमको सीखने के लिए मिलेगा। और जहाँ पे हम काम करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे चीज़ें सीख कर वहाँ पे क्या कमी है तो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सके चीज़ें को। तो ये बेसिकली हमारा मेन काम है। और प्रोग्राम का तो यहाँ पे हम सीखेंगे कल्चर क्या होता है, गाँव में किस तरीके से प्रोग्राम रहता है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। पहले राम राम सारे ने, मेरा नाम आयुष रंजन है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पहला बात है कि पहले से गांधी जी का एक मॉडल था कि किसी भी चीज़ के देश का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो गांव देखो, गांव कैसा है, वहाँ का बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ का पढ़ाई लिखाई। और यहाँ आने के बाद हमारा वो जो मोदी जी का विज़न था कि पहले गांव विकास करना है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर चीज़ का फैसिलिटी है यहाँ पे, स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, क्रिकेट का बहुत अच्छा सिखाया जाता है। और हमारे पिरामल फाउंडेशन से हमें यहाँ भेजा गया, उसके लिए मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि हमें ऐसा इंस्पिरेशनल मॉडल विलेज देखने को मिला। और इससे हम आगे भी जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जैसे मैं भी असम में रिलेटेड डीबीसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके हम उनको भी बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एकजुटता बहुत है, जो कि बहुत सबसे मेजर पॉइंट है कि यहाँ के गांव में एकजुटता बहुत है। यहाँ जात पात क्लास को नहीं देखते हैं, सब एक साथ मिलकर निर्णय लेके अपने काम को फोकसली कर रहे हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे कोई तुम ये करो, सब एक साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे एक वो पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जो भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति में होंगी, उसको मैंने देखा। सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर समझदारी के साथ पतंग उड़ाने का क्या लगता है। मैंने देखा जब मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था, तो गाड़ी में एक फ्रेम लगी हुई थी, ताकि बचाव भी करना है अपने आप को और वो महोत्सव भी यूज़ करना है। तो बहुत अच्छा है, उसमें भी डाइवर्सिटी है इंडिया में। पतंग उत्सव हम भी आप देखेंगे इतने अच्छे बड़े पैमाने पे हमारे भी होते हैं, लेकिन थोड़ा कम होते हैं। लेकिन गुजरात में फेमस है मकर संक्रांति, तो उसको लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत इंजॉयबल फन कर रहे हैं यहाँ पे।